جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں پر شکر کرنے کا بھی حکم کیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تو فرائض ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس لیے کہ انسان ناشکری بہت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا، اس کے پیدا کرنے کے بعد ساتھ یہ فرما دیا کہ تمہارا رزق میرے ذمے ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، جو نعمتیں میں تمہیں دوں ان پر تم شکر ادا کرو۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور جتنی میری نعمتیں ہیں تم استعمال کرتے ہو دن رات، اور اگر ان نعمتوں کی ذرہ برابر تم نے ناشکری کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کی شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے؟ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر پوچھا اماں جان ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول کی کون سی بات عجیب نہیں ہے، ہر بات عجیب ہے، کہا کوئی بات بتا دیجئے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پوچھا اے عائشہ مجھے اجازت دو، میں اپنے پروردگار کے سامنے عبادت کے لیے جھکنا چاہتا ہوں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ نے اجازت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور رات بھر نمازیں پڑھتے رہے اور نمازوں میں روتے رہے، اور سجدہ کیا، سجدے میں بھی روتے رہے، سجدے سے سر اٹھایا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فجر کی نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، آپ کے تو اللہ نے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور قرآن مجید میں اعلان کر دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محبوب آپ کے تو آپ کے رب نے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ پھر بھی کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس رب نے میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہو کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بتاؤ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، راستے میں پتھر کو دیکھا کہ پتھر چھوٹا ہے اور اس میں پانی زیادہ بہ رہا ہے، حضور حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے؟ اللہ نے اس پتھر کو گویائی دی اور اس پتھر سے آواز آنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور مجھ سے پانی زیادہ نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ اس پتھر کو تو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، حضور نکل گئے۔ چند دنوں کے بعد حضور کا وہاں سے واپس گزر ہوا، دیکھا کہ اس پتھر میں اسی طرح پانی بہ رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ جب تو جہنم کے ڈر سے رو رہا تھا میں نے اللہ کے سامنے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اب بھی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس پتھر نے کہا، اس پتھر نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اب بتاؤ مسلمانوں ہمارا کیا حال ہے؟ ایک پتھر جو رب کے عذاب کے ڈر سے رو رہا تھا اور جب اس کو چھٹکارا ملا اس پر بھی اللہ کے حضور رو رہا ہے، یعنی اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر آنسو بہا رہا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اگر کتنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے، ہمیشہ
उन नेमतों पर उसे शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जितनी नेमतें दी है, आसमान है, जमीन है, चांद सूरज है, पहाड़ है, आंख है, दिमाग है, दिल है, हाथ पांव है, कितनी अल्लाह की नेमतें इंसान इस्तेमाल करता है। इसी को कुरान मजीद कहता है अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी है, अगर तुम अल्लाह की उन नेमतों को शुमार करना चाहोगे, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहोगे, शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। जिस तरह एक इंसान अगर आसमान के सितारों को गिनना शुरू कर दे वो हरगिज नहीं गिन सकता, अगर जमीन के जर्रात को गिनना शुरू कर दे नहीं गिन सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम मेरी दी हुई नेमतों को अगर शुमार करना चाहोगे तो हरगिज शुमार नहीं कर सकते। इसीलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज नहीं शुमार कर सकते। एक आंख उठा लो, एक दिमाग ले लो, हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, बाजू अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इस नेमत का अंदाजा और इस नेमत की कदर कीमत उससे जाकर पूछिए जिसके पास ये नेमत नहीं है। एक दिमाग की क्या कदर कीमत है, एक आंख की क्या कदर कीमत है। आप कह सकते हैं अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें की है, हाथ अल्लाह की नेमत है, आंखें अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, पाँव अल्लाह की नेमत है। इन नेमतों को तो मैं गिन सकता हूं। अल्लाह ने बंगला दिया, खेत दिया, जायदाद दी, बंगला कोठी दिया, बीवी बच्चे दिए, इन नेमतों को तो मैं शुमार कर सकता हूं। अल्लाह फरमाते ना 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 व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। ऐ परवरदिगार कैसे नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं इस आंख, ये आंख जो मैंने तुझे नेमत दी है, बता तूने पैदाइश से लेकर आज तक इस आंख से तूने कितना देखा है। ये हाथ मैंने तुझे एक नेमत दी है, बता तूने इस हाथ को कितना इस्तेमाल किया। इस जुबान मैंने तुझे नेमत एक नेमत के तौर पर दी है, बता इस जुबान से तू कितना बोला है, इस जुबान से तूने कितनी चीजों की मजे चखे हैं। अंदाजा लगाओ कि हम शुमार कर सकते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तीन तराजू रखेंगे, तीन चीजों का तराजू सामने रखेंगे, एक नेकियों का, एक गुनाहों का और एक इंसान के नेमतों का पलड़ा अल्लाह सामने रखेंगे। और उस वक्त सवाल करेंगे एक नेमत को कहेंगे कि तू अपना मुआवजा उसकी नेकियों के बदले ले ले। मैं पूछ सकता हूं अगर उस वक्त एक आंख ने, हदीस पाक में लिखा है कि उस वक्त अल्लाह की एक नेमत उठेगी, उन सारी नेकियों का बदला मुआवजे के तौर पर लेगी और फिर भी कहेगी अल्लाह अभी भी इसका मुआवजा पूरा नहीं हुआ है, अभी नेकियों का गठड़ा तो बाकी है, गुनाहों का पलड़ा तो बाकी है। अंदाजा लगाओ हम कैसे अपनी नेमतों को अल्लाह के सामने और अल्लाह के हुजूर पेश करके शुक्राने के तौर पर अदा कर सकते हैं। इसीलिए जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है, जितनी अल्लाह ने नेमत दी है, इन नेमतों की कदर कीमत को पहचानो। एक हाथ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इस इंसान से जाकर पूछो जिसके पास ये हाथ नहीं है। एक निगाह अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उस आदमी से जाकर पूछो जिसके पास बीनाई नहीं है। एक आदमी करोड़पति है, उसका बंगला था, करोड़पति आदमी बड़े बंगले में रहता था, लेकिन उसकी आंखों की बीनाई नहीं थी। उसी बंगले के नीचे एक रेहड़ी वाला खड़ा था जो दिन की 500-400 दिहाड़ी कमाता था। 1 करोड़ रुपए का मालिक, बंगले का मालिक घर में रह रहा है, लेकिन आंखों की बीनाई से माजूर है। उसने पैगाम भिजवाया, जो नीचे ठेला लगाए हुए खड़ा था उससे जाकर कहा कि तू अपने आप को कम न समझ, तू मुझसे बड़ा मालदार है, तू मुझसे बड़ा करोड़पति है। उसने कहा कि वो कैसे, तू एक काम कर, मेरा 1 करोड़ों का बंगला ले ले, मुझे तू अपनी दोनों आंखें दे दे। अल्लाह की कसम उसने इनकार कर दिया कि मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। अब बताओ एक आंख अल्लाह की कितनी नेमत में बड़ी नेमत है। इस आंख को अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, अब इस आंख का क्या शुक्र है। इस आंख को अल्लाह ने पैदा किया और शुक्र का साथ तरीका भी बताया कि ये कलामुल्लाह मेरी किताब है, इसको पढ़ो, ये नमाज है, इसके सामने मेरे सामने अपनी निगाहों को झुकाओ, जायज चीज देखो, नाजायज ना देखो, मोबाइल में गलत चीज नहीं सही चीजें देखो, इसलिए मैंने तुम्हें निगाही दी है। ये दिमाग मैंने तुझे दिया है किसी को लड़ाने की प्लानिंग करने के लिए नहीं,
नहीं, किसी पर जमीन पर दबाने के लिए नहीं, प्लानिंग करने के लिए नहीं दिया। मैंने तुझे दिमाग इसलिए दिया है कि तू कुरान सीख, अल्लाह के नबी की तालीमात को सीख और लोगों तक पहुंचा। मैंने तुझे हाथ इसलिए दिए हैं कि तू किसी पर जुल्म नहीं बल्कि किसी के लिए भलाई का काम कर, अच्छाई का काम कर। इन हाथों से तू हराम का लुकमा नहीं बल्कि हलाल का लुकमा कमा। ये पैर मैंने तुझे इसलिए दिए हैं, तू इनसे चलकर कोई अच्छाई के रास्ते की चल, अच्छाई के रास्ते की तरफ चल, किसी के लिए भलाई के लिए चल कर जा, किसी जिनाकारी, बदकारी और किसी पर जुल्म और ज्यादती के लिए करने के लिए किसी की तरफ न चल। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी इंसान को नेमतें दी है, अगर उन नेमतों पर इंसान गौर करे और अपनी अकल दौड़ाए कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं जो मुझ पर दिन रात बारिश की तरह बरस रही है और मैंने उनको फरामोश कर रखा है। याद रखो, जितनी भी अल्लाह ने आपको नेमतें दी है, हाथ है, जुबान है, कान है, दिल है, हर चीज अल्लाह ने दी है। आप यूं ना समझिए कि इतनी सारी नेमतें लेकर मुझसे नहीं पूछा जाएगा। एक एक चीज के बारे में कयामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा। हाँ, पूछा जाएगा, इस जुबान से तूने कितना सच बोला था, इस आंख से तूने कितनी अच्छाई की चीजें देखी थी, कितनी बुराई की चीजें देखी थी। हर चीज के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। इसलिए जो नेमतें आपके पास है, खुदारा इनकी कदर कीजिए, इनको गनीमत समझिए और अल्लाह के हुजूर अपने आप को झुकाइए। इस जिस्म के आज़ा जितनी भी आपकी नेमतें हैं, इनका शुक्राना ये है, इन नेमतों का शुक्रिया ये है कि आप अपने जिस्म को अपने अल्लाह के सामने झुकाओ, आप अपने जिस्म को थकाओ तो अल्लाह की इबादत के लिए थकाओ, और अगर हलाल रिस्क करके हलाल रिस्क कमाकर अपने जिस्म को थकाओ। शाम का एक बादशाह था जिसका नाम जबल था, बहुत बड़ा बादशाह। उसके दिल में इस्लाम का शौक पैदा हुआ कि मुझे इस्लाम लाना चाहिए। इस्लाम कबूल किया और काबतुल्लाह शरीफ की तवाफ के लिए आया। जब काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था तो तवाफ करते करते उसकी चादर किसी के पांव के नीचे आ गई और चादर गिर गई। उसने उस आदमी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा तो उस आदमी ने भी उसके मुंह पर तमाचा मारा। बड़ा बादशाह आदमी था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में पेश हुए, वाक़या बयान किया। अमीरुल मोमिनीन, इसने मेरी चादर पर पांव दिया, मैंने इसको मारा, इसने बदले में मुझे मारा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इसने जो किया है सही किया है। उस बादशाह को गुस्सा आया कि मैं कितना बड़ा बादशाह, अगर कोई हमारी शान में गुस्ताखी कर दे हम उसके तो कत्ल के फैसले करते हैं। अमीरुल मोमिनीन की नजर में कोई बात नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने फरमाया, यह तो इस्लाम से पहले था, अब इस्लाम ने बुलंदी और पस्ती को बराबर करके रख दिया है। अब कोई ऊंचाई नीचाई नहीं है, सब बराबर है। उस आदमी ने कहा कि अगर इस्लाम के अंदर ऐसा है तो फिर मजहब इस्लाम को छोड़ देता हूं, और उसी वक्त कुस्तुनतुनिया की तरफ भागकर चला गया और वहां जाकर रहने लगा। चंद दिनों के बाद एक सहाबी रसूल कुस्तुनतुनिया पहुंचे और उनके सामने जब हाजिर हुए तो उसने नदामत की कि मुझे अब दायरे इस्लाम में वापस आना है, मैंने जो काम किया है गलत किया है, मैं उस पर माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं इस्लाम लाऊंगा तो एक शर्त पर लाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की बेटी अगर मुझे निकाह में देगा तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। वो सहाबी कहने लगे, इसका तो फैसला अमीरुल मोमिनीन खुद करेंगे। वो सहाबी वापस आए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आकर कहा कि वो आदमी कहता है कि अगर आप अपनी बेटी को मेरे निकाह में देते हो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हजरत उमर ने फरमाया कि मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, अगर कोई मेरी बेटी के साथ निकाह करके इस्लाम में आना चाहता तो मैं राजी हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर खुशी का इजहार किया। वो सहाबी वापस कुस्तुनतुनिया पहुंचे। अभी कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो रहे थे, उसी वक्त उस आदमी का जनाजा निकल रहा था। जिस वक्त उसको इस्लाम की नेमत मिल चुकी थी उसने उसकी कदर नहीं की, और जब इस्लाम के हाथ धो देता फिर दिल में ख्वाहिश जाहिर की मुझे इस्लाम लाना चाहिए। जब वो सहाबी रसूल पैगाम लेके आ रहा था उससे पहले उसका जनाजा कुस्तुनतुनिया से निकल रहा था। इसीलिए जो ईमान के हमारे पास दौलत है इसको गनीमत समझो, इसको बड़ी दौलत समझो, इसको मामूली निगाह से ना देखो। अल्लाह की कसम जब ये इंसान से निकल जाती है फिर इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह ने जितनी भी नेमत दी, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ने जितनी आपको नेमतें दी है, जितना भी अल्लाह ने आपको दे रखा है, हमेशा अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बने।
नाशुक्री ना करे। अल्लाह ताला का फरमान है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जो मैंने तुम्हें नेमतें दी है उस पर अगर शुक्र करते रहोगे और जिस वक्त भी तुम्हें मेरी नेमतें याद आए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का शुक्र है मुझे रब ने 2 टाइम का खाना खिला दिया, रब का शुक्र है मुझे रहने के लिए अल्लाह ने मकान दे दिया, जितनी भी अल्लाह ने आपको नेमत दे रखी है उस पर आप अपने रब का शुक्र अदा करें। इसी पर कुरान का वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता रहूंगा। वलाइन कफरतुम, अगर तुम मेरी इतनी बड़ी नेमतें खाकर अगर नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त और मैं पकड़ लेता हूं। इस्लाम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। एक अल्लाह वाले को जेल में ले जाया गया, मसाइब में परेशान है, किसी ने कहा कि अल्लाह वाले आपको बगैर कसूरों के जेल में बंद कर दिया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मसाइब में तो गिरफ्तार हो लेकिन मासियत में गिरफ्तार नहीं हो, यानी मैं गुनाहों से तो महफूज हो, अगरचे मुझ पर जिस्मानी तौर पर तकलीफ पहुंचाई जा रही है लेकिन मैं गुनाहों से बचा हुआ हूं। अब अंदाजा लगाओ अल्लाह ने आपको जितनी भी नेमतें दी है, एक छोटी छोटी नेमतों की आप कदर करना सीखें। जितनी भी आप दौलत अल्लाह ने दी है उस पर शुक्र अदा करें और आप खुद भी शुक्र अदा करें। अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें, बेटा पूछे अब्बू ये किसने दिया, ये नहीं फला तेरी नानी ने ला कर दिया है, तेरे दादा ने ला कर, नहीं बेटा ये चीज हमें अल्लाह ने दी है। हाँ, कोई भी चीज घर में नहीं लाओ, बच्चा जब सवाल करे अब्बू किसने दिया है, अल्लाह ने दी है, तो बच्चे के दिल में ये अकीदा और नजरिया बैठेगा कि हर चीज देने वाली जात अल्लाह की है। एक अल्लाह वाले ने अपने बेटे की ऐसी तरबियत की, जो भी चीज बच्चे से कहलवाते बेटा किसने दी है, अल्लाह ने दी है। एक वक्त ऐसा आया कि दरवाजे पर दूध देने वाला आया तो माँ ने कहा बेटा जाओ दरवाजे पर दूध लेकर आओ। जब दूध लेकर बेटा आया तो माँ ने पूछा बेटा दूध कहां से ला कर आए हो, तो बेटे ने कहा कि अम्मा दरवाजे पर अल्लाह ताला देने आई थी। कितना बच्चे के दिल में यकीन बैठ गया। तो माँ अपने बेटे को हाथ पकड़ कर ले गई बाप के पास कि देखो ये है हमारी मेहनत का नतीजा। जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाती है और हर चीज का यकीन अल्लाह की जात के साथ होने लगता है तो फिर इंसान गैरों के रास्ते छोड़कर अपने खालिक से हर चीज मांगना शुरू कर देता है। हम कितनी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी हमारा उसकी तरफ ज़हन ही नहीं जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन हर वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, हर वक्त अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अगर आप पर जो एक नेमत अल्लाह की है, आप देखो अगर आप घर में रह रहे हो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं घर में रह रहा हूं। कितने लोग ऐसे जो फुटपाथ पर ऐसे पड़े हुए जिनके पास घर नहीं है, आप 2 टाइम का आपको खाना मिल रहा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो दिन रात भूखे मर रहे, जिनको 2 टाइम का खाना मुयस्सर नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है। इसलिए जब भी आपकी जुबान चले तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने शुक्राने के तौर पर चले। ना शुक्रिया अगर इंसान करता है अल्लाह ताला उससे उन नेमतों को छीन लेते हैं और वो ऐसे ही घूमता रहता है। इसलिए याद अपना यकीन अल्लाह की जात के साथ रखें। जितनी भी अल्लाह ने आपको नेमत दी है एक एक नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और शुक्र यह है कि अल्लाह ने आंख दी है, आंख का सही इस्तेमाल करें, उससे बदनजरी ना करें, उससे गलत चीजें ना देखें। मोबाइल सामने है सही चीजें देखें, हराम चीजें और गलत चीजें तस्वीरें गलत वीडियोस ना देखें। और कान अल्लाह ने दिए हैं, इस कानों से गाने नहीं बल्कि दीन की बातें सुने और दीन के फैलाने और दीन को पढ़ने और उसको सुनने वाली बातें सुने। अल्लाह ने दिमाग दिया है तो इसमें अच्छी सोच रखें, कुरान समझने, लोगों को दीन की बातें समझाने की सोच रखें। अल्लाह ने हाथ दिए इस पर किसी पर जुल्म ना हो बल्कि कोई अच्छाई का काम हो। इसी तरह जिस्म के जितने भी आज़ा अल्लाह ने आपको दिए हैं इन तमाम का शुक्राना यह है कि आप अल्लाह के हुजूर झुकने वाले बन जाए। आपके पूरे जिस्म का जितनी भी अल्लाह ने आपको नेमतें दी है इन नेमतों का बेहतरीन सबसे शुक्राना यह है कि आप अल्लाह के हुजूर झुकने वाले बनाए। आपका जिस्म अल्लाह के हुजूर झुकना चाहिए। इसीलिए कुरान करीम का वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ये मेरे रब का वादा है। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। 10-100 बोरीबाजी हो गई अभी भी ये कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ है। ये क्या है? नाशुक्री है। एक इंसान दुनिया में किसी के साथ भलाई करता है, मिसाल के तौर पर ये घड़ी मुझे किसी ने हदिया में दी तो हर किसी को कहते फिरता है फला दोस्त ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दी है। अरे देख तेरे रब ने तुझ पर दिन रात में कितनी नेमतें तुझे दी है।
जिस आंखों से तू देख रहा है, ये आंख तेरे रब की कितनी बड़ी नेमत है, तो तूने उसका कितना शुक्राना अदा किया। ये तो दुनिया का कायदा है, कोई भी इंसान किसी को तोहफे के तौर पर कोई चीज देता है, हदिये के तौर पर कोई भी चीज देता है, तो इंसान एक दूसरे के सामने बयान करता है, फलां ने मुझे ये चीज गिफ्ट की है, फलां ने मुझे चीज हदिये में दी है। तेरे रब ने तुझे कितने तोहफों से नवाजा, कितनी नेमतों से नवाजा है, कभी तूने उसके सामने भी कोई शुक्राना अदा किया, उसके सामने कभी अपनी पेशानी को झुकाया है? इसीलिए हर चीज की कदर को पहचाने। आपने, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, इस औलाद का शुक्राना यह है कि आप उस औलाद को अच्छी तालीम दें, उसको अच्छे कुरान की तालीम दें, और उस औलाद की कदर और कीमत उससे जाकर पूछिए जिसके पास औलाद नहीं है। कभी नहीं ज़हन हमारा जाता इस तरफ, पर हजारों नेमतें हम अल्लाह ताला की दी हुई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी हमारा उसकी तरफ ज़हन नहीं जाता। ये नाशुक्री नहीं है तो और क्या है? सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ नेमतें मिलने के बावजूद अगर अल्लाह के सामने हम नहीं झुकते हैं, ये इस बात की अलामत है। अगर हम अल्लाह के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि हम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं। इसीलिए शुक्रगुजार बंदे बने, ना शुक्र नहीं। जो शुक्र करता है, अल्लाह ताला का वादा है कि मैं उसे दूंगा और बड़ा चढ़ा कर दूंगा। अल्लाह तबारक व ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे भी अपनी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी कदर कीमत हमें पहचानने और उसके बताए हुए हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम को अल्लाह ताला उन नेमतों की शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।